Okay, so let's just discuss some questions on the cell membrane and cell wall. जो भी टॉपिक अभी तक हो गए हैं उन पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. 3 we have already discussed. The term cell was given by Robert Hooke. A plant cell wall is mainly composed of the cellulose. And the third one, a plant without a cell wall is termed as protoplast. It is protoplast because all of the living components other than the cell wall are termed protoplast. एक होता है cytoplasm. ठीक है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं लाइक न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल दैट. तो साइटोप्लाज्म में अगर न्यूक्लियस भी इंक्लूड कर लिया जाए, न्यूक्लियस का फ्लूइड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म. So sometimes it is being asked or it should be understandable that what is the difference between cytoplasm and protoplasm. तो protoplasm having cytoplasm plus nucleoplasm also. Okay, cytoplasm में nucleoplasm include नहीं होता but protoplasm में दोनों include होते हैं, all the living component. That's why it is called the protoplast. Fourth one question was that which component is present in the cell wall of fungus? So that is the chitin. So let's start with the fifth one. 4 we have already discussed. So peptidoglycan is made up of. Okay, I will ask, then you will answer. Shinu will tell. Shinu Suredia. A peptidoglycan is made up of what? Yes. Sir, third option. N-acetyl glucosamine, that is NAM, and N-acetyl muramic acid. N-acetyl muramic acid, yes. That is NAG, N-acetyl glucosamine. Okay, so it is made up of only these, Shinu? Sir, amino acid भी होते हैं. The N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid are linked by glycosidic linkage, but this one chain, this second chain, this third chain, and this fourth chain, from which they are linked? Shinu? They are linked by peptide bonds and the amino acids. It means the alanine, glycine, what are those? Those are also the amino acids. So yes, sir. D. Okay, sir. Okay, no problem. थोड़ा सा बस एक बार पढ़ना होता है डिटेल में ना, याद आ जाता है. No problem. Although you were right, component यही दो होते हैं and amino acids are also present to form the bonds. Okay, sixth one. चलिए मोहित बताएंगे. आज ही पढ़ाया मोहित मैंने. ट्राई. जो दो कंपोनेंट होते हैं N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid, ये दोनों कौन से लिंकेज से लिंक होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन में? Yes, Mohit. 1,4-alpha linkage. Beta 1, but you have to specify the configuration beta. ठीक है? Yes, Anjana. Is this right? Beta 1,4 glycosidic linkage. Anjana Yes, Raj. Okay. Beta 1,4 glycosidic linkage होगी बेटा sugars में. ठीक है? So answer will be A. Okay, Bhumika will tell now. Bhumika, roll number 10. Seventh question. Which layer of the cell wall is nearest to the plasma membrane? Suppose this is the plasma membrane, this is cell wall. Cell wall having 3 component, middle lamella, primary cell wall and secondary cell wall. तो तीनों कंपोनेंट्स में से कौन सा सबसे नियरेस्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? भूमिका, आशा, सर मैं बताऊं? सेकेंडरी सेल वॉल. मिडल लैमेला होता है सर. मिडल लैमेला. प्राइमरी सेल वॉल. सभी के सभी पिट हो गए मुझसे वर्चुअली. प्राइमरी सेल वॉल. अच्छा, प्राइमरी सेल वॉल पास होती है. सेकेंडरी सेल वॉल. तीनों ही बता दिए. सेकेंडरी सेल वॉल. ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल. सेकेंडरी सेल वॉल होती है. आंसर तो यही रहेगा. सपोज ये कोई सेल है, ये दूसरी सेल है, दोनों सेल आपस में मिडल लैमेला से कनेक्ट हैं. उसके बाद पीसीडब्ल्यू है, प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है. तो सबसे नियरेस्ट सेकेंडरी सेल वॉल. और सेकेंडरी सेल वॉल में भी कौन सी? L1, L2 या L3? सेकेंडरी सेल वॉल में भी 3 लेयर होती है. L3 नजदीक होती है सबसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
ठीक है, एट्थ बताइए। एट्थ बताएंगे रॉबिन। यस रॉबिन। भारती, दिव्या, एनीवन? रॉबिन, भारती, दिव्या। प्लांट सेल का एग्जांपल भी एटलीस्ट आंसर कीजिए, गलत कर दीजिए नो प्रॉब्लम। सर कोलन काइमा सी। कॉलन काइमा जो होती है ये एक टाइप ऑफ प्लांट सेल है। स्मूथ मसल सेल, नर्व सेल, फ्लेम सेल, दीज ऑल आर प्रेजेंट इन एनिमल्स। फर्स्ट सेल वाज ओरिजिनेटेड, फर्स्ट सेल वाज प्रोकैरियोटिक सेल। कब ओरिजिनेट हुई थी? अंशु है 3.5 billion years ago. ह्यूमन में लार्जेस्ट सेल क्या होती है? ओम सेल। एनीवन कोई भी बता B दीजिए। option. नर्व सेल सर। नर्व सेल, Bone cell. नर्व सेल लॉन्गेस्ट होती है, सॉरी मैंने लार्जेस्ट, Nerve cell. लॉन्गेस्ट Yes, sir. बेटे बट क्वेश्चन में लार्जेस्ट है, सॉरी। ठीक है, तो ओवम होगा। ओके, the foldings in the plasma membrane of prokaryotes is called what? This is the, suppose plasma membrane, Mesosome. yes. Mesosomes. So these foldings are called mesosomes. The fluid of the mitochondria is called what? मैट्रिक्स। Matrix. What is Christy? Inner enfolding. Sir, Christie foldings होती है. Inner foldings inside the mitochondria. These are the Christy. ठीक है, this is the Christy, this is outer membrane, and this fluid is the matrix. Matrix having ribosomes as well as the mitochondrial DNA. Stroma क्या होता है? Sir, the ground meristem जो उसके अंदर होता है. No, stroma. बेटे ध्यान कीजिए, स्ट्रोमा क्या होता है? हाँ सॉरी, वो तो क्लोरोप्लास्ट होता है. क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म। हाँ सर, वो तो. थर्ड बताइए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव व्हाट? सेल मेम्ब्रेन सर। सेल मेम्ब्रेन सर. होती है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, एनीवन, Cell membrane. मोनेरा, एवरीवन। ओके, 14th बताइए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एनीवन? फर्स्ट। सेकंड. क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनामिक नहीं होती? डायनामिक का मतलब? Third. सारे बोल रहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। भाई डायनामिक होती है ना, मोशन नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन Yes, हिलती नहीं रहती, फ्लूइडिटी भी होती है, फ्लूइडिटी भी मोशन होता है, कैपेसिटर भी होता है। एक सेकंड होल्ड करना, चार्ज भी स्टोर करती है, वेट। सर सी है इसका ऑप्शन। यस सर, सी है. इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट में नहीं रहते ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो डायनामिक है ये, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो ये बात गलत है। बाकी सब कैरेक्टर्स हैं इसके। सर फर्स्ट का रीजन बता दीजिए सर, वो कैपेसिटर कैसे करती है बिहेव? चार्ज को स्टोर करती है भाई ये, ठीक है। इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है एक पर्टिकुलर -20 मिलीवोल्ट। चार्ज क्या होता है भाई, कौन बताएगा? स्लाइटली नेगेटिव होती है, पॉजिटिव इनसाइड? नेगेटिव. क्यों? सर वो डीपोलराइज स्टेट में होती है। पॉजिटिव आयंस बाहर ज्यादा होते हैं बेटा, पोटेशियम और ये सब, ठीक है। तो इसलिए बाहर ज्यादा पॉजिटिव होती है, अंदर नेगेटिव, तो इसलिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है और उस चार्ज को स्टोर करके रखती है, इसलिए एज ए कैपेसिटर ये एक्ट करती है।
करवाया है ये मैंने सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैरेक्टर्स में। 15th बताइए। lateral Sir, movement, lateral movement. सेम लेयर है, देखिए बाई मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड बाई लेयर, दिस इज द अपर लेयर, सपोज दिस इज द लोअर लेयर। विद इन सेल, विद इन वन लेयर, एक लेयर के अंदर मूवमेंट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूवमेंट, ये कहलाता है लेटरल मूवमेंट। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप होता है इस तरह से दो के बीच में, फ्लिपेज, स्लॉपेज, स्क्रैम्बलेज पढ़ाया था ना। चलिए नेक्स्ट बताइए 16। van der Waal interaction, Sir, van der Waal interactions. सेम मोइटी के अंदर, ठीक है, एक ही लेयर में, सेम लेयर में दो लिपिड मोइटीज के अंदर, ये आपका हेड है, ये टेल है, तो यहाँ ही आपस में अटैच होती है वैन डर वाल फोर्सेस से, यानी एक लेयर फॉर्म होती है वैन डर वाल फोर्सेस से। दोनों लेयर्स के बीच में कौन सी स्टेबलाइजेशन होती है? हाइड्रोफोबिक स्टेबलाइजेशन या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। सेवनटीन्थ बताइए, सैंडविच मॉडल को क्या बोलते हैं? और सिंजर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, नहीं, Daniel and Davison. Daniel and Davison. डैनियल एंड डेविसन ने सैंडविच मॉडल दिया था, गॉटर एंड गिल्डन ने खुद का मॉडल दिया था, रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। ठीक है, तो डैनियल एंड डेविसन। 18th बताइए, कौन सा एंजाइम हेल्प करता है इनवर्ड मूवमेंट में? lipase, अच्छा, तो स्क्रैम्बलेज का, Lipase. स्क्रैम्बलेज का क्या फंक्शन है? अब बताइए। फ्लिपेज तो अंदर लाने का काम करता है भाई, यही मैंने पूछा है, नो डाउट। स्क्रैम्बलेज क्या करता है? अंदर भी लेके आता है और बाहर भी, तो अंदर लाने में स्क्रैम्बलेज का रोल नहीं है? yes, Yes, sir. आंसर बोथ ए एंड सी। ध्यान रखा करिए छोटी छोटी चीजें। चलिए नेक्स्ट बताइए 19। ग्लाइकोफोरिन कैसा प्रोटीन है? बताया था मैंने एग्जांपल। एक्सट्रिंसिक है। अच्छा, सिंगल पास होता है ये, एक्सट्रिंसिक कैसे हो गया? Intrinsic, sir. इंट्रिंसिक। चलिए तो एक्सट्रिंसिक का एग्जांपल बताइए। Sir, spectrin और ankyrin. और एनकाइरिन, किसने बताया ये? वेरी गुड। तो ये है आपका सराहती। सिंगल पास इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, ये मैं अभी पूछ रहा था पहले, मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी किसने आंसर किया? सही बताया था, वो ये बेटे, स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन। चलिए कैरियर प्रोटीन बताइए क्या होते हैं? 20th क्वेश्चन। यस शिनू। Sir, active. कैरियर both active and passive, Both active and यस, हमेशा एक्टिव ही नहीं होते, पैसिव भी होते हैं कैरियर। C फैसिलिटेटेड option. डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं वो पैसिव भी होते हैं, तो सी होगा। चैनल क्या होते हैं? always passive, चैनल्स आर ऑलवेज पैसिव, तो ए आंसर होगा। ठीक है, देखिए दो तरह के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जिन्होंने नया अभी ज्वाइन किया स्टूडेंट्स ने कंफ्यूज ना हो। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, कैरियर और चैनल। ठीक है, तो उसमें चैनल जो होते हैं हमेशा पैसिव होते हैं, कैरियर बोथ होते हैं, एक्टिव एज वेल एज पैसिव। 22nd क्वेश्चन बताइए। साइटोकाइनेसिस के दौरान जो सेल प्लेट बनती है उसको क्या कहते हैं? phlegmoblast, ओके, एनीवन एल्स? Robin, don't annotate. फ्लैग्मोप्लास्ट बोलते हैं भाई उसको। ठीक है, 23rd बताइए, मोहित बताएगा। This thing I have discussed 3 times in this lecture also. करेक्ट स्ट्रक्चरल ऑर्डर क्या है? PCW का मतलब है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडल लैमेला। ML का मतलब। आप करेक्ट ऑर्डर बताइए, आउटसाइड टू इनसाइड बताना है, सेल के बाहर से जब अंदर की तरफ आ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। क्या ऑर्डर होगा? पहले मिडल लैमेला होगी, फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, बी आंसर। secondary cell wall. Yes, sir. माइक्रोफाइब्रिल्स किसके बने होते हैं? cellulose, ओके। और 25th, द सेल वॉल ऑफ आर्किया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन की तो बैक्टीरिया, Peptidoglycan. सूडोपेप्टिडोग्लाइकन। आई हैव आस्क्ड द आर्किया। ओके, Sir, archaea bacteria है ना? आर्की बैक्टीरिया है, बट आर्की बैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं ना,
दैट्स व्हाट आई हैव हाँ सर। नॉर्मल बैक्टीरिया में जो राइट नाउ जो अभी बैक्टीरिया मिलते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो कैसे भी बैक्टीरिया हो, ग्राम नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं। एंशिएंट बैक्टीरिया थे, उनकी जो सेल वॉल थी वो सूडो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ओके, दिस वाज सम इसका लास्ट